Okay, good morning, everyone. So, in the last lecture, we discussed about the types or the basis on which we divide the types of communication. And today we are going to discuss those types further in detail. So, in the last lecture, we discussed all these types. So today we are going to pick up this first one, that is on the basis of expression. And I told you that on the basis of expression we can divide it into two parts, that is verbal communication and non-verbal communication. And then if we talk about verbal communication is that type of communication in which we communicate with each other with the help of words. हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वर्ड्स की हेल्प के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारा मैसेज है, आइडिया है, थॉट, इमोशन, एक्सप्रेशन, जो भी हमने कम्युनिकेट करना है। एंड इफ़ वी आर यूजिंग वर्ड्स, सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हम वर्ड्स को यूज़ करके कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो या तो वो ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म में होगा या फिर वो रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में होगा, right? So today, firstly, we are going to start with what is verbal communication, and then we'll move forward to the types that are oral communication and written communication. So moving further, let's first discuss that what is verbal communication in detail. So verbal communication is any communication that uses words to share information with others. So मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स की हेल्प के साथ अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है। These words may be spoken or written. So ये spoken हो सकते हैं या फिर ये written हो सकते हैं. There is no other way out for conveying your message by using words. दो ही तरह के ये हो सकते हैं, या तो हमारा जो मैसेज है हम ओरली किसी को बोल के बताएंगे, मतलब, या फिर हम उस मैसेज को लिख के बताएंगे। वर्ड्स की हेल्प के साथ अगर हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो कोई भी तीसरा तरीका नहीं है हमारे पास। वी जस्ट हैव दीज टू ways of communication with us. Next, it says that here the sender gives words to his feelings. जो भी सेंडर होता है वो अपने फीलिंग्स या थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस को वर्ड्स देता है। हमने पहले बात करी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो इन दैट टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट कोडिंग, encoding and decoding, right? So this phase of giving words to the feelings or thoughts or ideas and opinions, जब एक सेंडर अपने फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज या ओपिनियंस को वर्ड्स देता है तो वो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ ही डिस्कस हो रही है यहाँ पे। हेयर द सेंडर गिव्स वर्ड्स to his feelings, thoughts, ideas, and opinions, and expresses them in the form of speeches, discussions, presentations, and conversations. So उन फीलिंग्स को कन्वर्ट करने के बाद, उन फीलिंग्स को या आइडियाज़ को वर्ड्स देने के बाद क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है हमारा सेंडर। आफ्टर converting or giving words to his feelings and thoughts, he is going to express those ideas and opinions in the form of, किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा या कन्वे करेगा, या तो वो किसी स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, या डिस्कशन के फॉर्म में हो सकता है, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो सकता है, कन्वर्सेशन के फॉर्म में हो सकता है, किसी रिटन written communication के through भी हो सकता है। It can be a letter, it can be a text message, it can be a notice. So there are different ways through which a sender can convert his feelings, ideas, thoughts into the speeches, into the discussion, presentations and conversations. So इसके बाद कहा जा रहा है कि the verbal element of communication is all about the words that you choose. कि जो भी हम जो verbal element है, that is all about कि हम क्या words choose कर रहे हैं और how they are heard and interpreted, कि उनको कैसे receive करके उनको कैसे समझा जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट जब भी एक सेंडर एक रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है, इज इट रिसीव्ड इन द सेम वे? जो भी मैसेज एक सेंडर कन्वे करता है एक रिसीवर को, क्या उस एज इट इज देता है? लगी हुई हाँ जी,
कंफ्यूजन। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक कि मैसेज चेंज हो सकता है अगर सपोज सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव करके अंडरस्टैंड करा है, इज इट गोइंग टू बी द सेम मैसेज, और चांसेस आर देयर कि वो मैसेज में चेंजेस हो जाए थोड़े बहुत, या अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करा जाए, अंडरस्टैंड करा जाए? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम द क्लास? जो भी आपको लगता है कि इफ यू फील कि मैम मैसेज सेम रहेगा तो टेल मी, अगर आपको लगता है कि मैसेज चेंज हो जाएगा तो वो भी एटलीस्ट शेयर व्हाट यू थिंक. Nobody in the class can answer this. क्या क्वेश्चन? The question is कि when a sender sends a message, जब एक सेंडर एक मैसेज भेजता है रिसीवर को और रिसीवर उसको रिसीव करके अंडरस्टैंड करता है, तो क्या वो मैसेज हमेशा सेम तरीके से अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट करा जाता है, या उसमें चेंजेस हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है कि जो रिसीवर है उसने एक अलग तरीके से उस चेंजेस मैसेज हो को सकते समझा है. मैम चेंजेस हो सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ जी. चेंजेस हो सकते हैं कई बार मैसेज हो, एक वर्ड का मीनिंग वो ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ मैसेज होर ਕੀਤਾ तो समझ कुछ होर ਜਾਂਦਾ। So that is right that the message can change, the message may change, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एज्यूम करते हो बहुत कुछ दूसरे लोगों के बारे में, आप इवैल्यूएट करते हो उनको, हम जज करते हैं लोगों को. सो उन्हीं बेसिस के ऊपर हमारा जो मैसेज का मीनिंग है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, इफ़ वी आर द रिसीवर, तो वो चेंज हो सकता है. एक सिचुएशन लेते हैं कि देयर इज समबडी यू डोंट लाइक, और यू फील कि वो आपको पसंद नहीं करता. ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद है वो इंसान, एंड यू आर गोइंग समवेयर एंड दैट पर्सन, ही और शी, गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट. आपको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ओके आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, और ना ही आपको वो पसंद है और ना ही वो आपको पसंद करते हैं. तो आर यू गोइंग टू टेक द मैसेज इन द सेम वे? नो मैम. नो. व्हाई नो? और क्या मैसेज इंटरप्रेट कर सकते हैं हम उस चीज़ का? क्या समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी उस मैसेज से? मैम एज अ टॉन्ट. एग्जैक्टली. सो चांसेस क्या है कि हम उसे एज अ टॉन्ट लें कि ओके इसने हमें टॉन्ट मारा है, मे बी वी आई एम नॉट लुकिंग दैट गुड, तो जानबूझ के बोला है मेरा मजाक बनाने के लिए. सो अब मैसेज क्या था कि यू आर लुकिंग गुड, और मैसेज का मीनिंग क्या हो गया कि शायद टॉन्ट करा है, और आई एम नॉट लुकिंग गुड एंड दैट इज वाई उसने मुझे टू जस्ट टू मेक मी फील बैड उसने ऐसा बोला है. सो द मैसेज विच वॉज सेंट वॉज नॉट रिसीव्ड इन द सेम वे. सो इसमें क्या हुआ, बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हम एज्यूम करते हैं, या हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है या रिलेशनशिप्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर मैसेज का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, आपने घर पे या आपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी यू डिड समथिंग रॉन्ग. ठीक है, आपने कुछ शरारत करी या एनीथिंग दैट दैट वाजंट सपोज्ड टू बी डन, आपने ऐसे कुछ काम करा. ठीक है, या आपने इट कैन बी एनीथिंग, घर पे कुछ क्रॉकरी टूट गई आपसे, तो उसके बाद आपके मदर आपको कॉल करते हैं, या कॉलेज में या स्कूल में आपके टीचर आपको बुलाते हैं. ठीक है, तो जब आपको बुलाया जाएगा तो आपके दिमाग में अब मैसेज क्या है, दैट कम एंड मीट मी, राइट?
सो उसमें क्या होगा कि जो रिसीवर है वो बहुत सारी चीज़ें और भी अज्यूम या अंडरस्टैंड करेगा उस मैसेज से, कि शायद मेरी जो गलती थी वो पकड़ी गई है, शायद पता चल गया है कि मैंने ये गलत करा था. देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में आएंगे उस टाइम पे, राइट? बट मैसेज वो नहीं है. मैसेज इज समथिंग एल्स एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू टेक आउट एडिशनल मीनिंग्स आउट ऑफ इट. आप और ही मतलब उससे निकाले जा रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल रहे हो. सो दैट इज द सिचुएशन जिसमें एक सेंडर ने मैसेज सेंड करा और रिसीवर ने रिसीव करा, पर मैसेज एग्जैक्टली सेम तरीके से रिसीव नहीं हुआ. और ये बहुत बार होता है. ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्ट्रडिक्शंस जो हमारे होते हैं लोगों के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन. ठीक है, कि किसी ने कुछ बोला था या कुछ समझ लिया या अच्छे से सुना नहीं, तो उसकी वजह से अज्यूम कर लिया कुछ भी, तो उसकी वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट? सो वी शुड मेक श्योर कि हमारा जो मैसेज है, जैसे हमने जो 7 C's पढ़े थे. Are we through with 7 C's? Have we discussed 7 C's in the class? अभी नहीं करे ना? Ma'am, yes. Okay, so we'll discuss those 7 C's as well. तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपका जो मैसेज है वो कैसे आपने डिलीवर करना है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसइंटरप्रिटेशन ना हो. ठीक है. So looking at the next paragraph, it says the success of verbal communication depends not only on the speaking ability of an individual but also on the listening skills. So दो चीज़ों के ऊपर depend करती है success. First is on the speaking ability, ठीक है. दूसरी on the listening skills of the person. ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा मैसेज अच्छे से पहुँचे, तो मुझे बस मेरे स्पीकिंग एबिलिटी या मेरे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आई शुड बी अ गुड रिसीवर एज वेल. मैं अच्छे से मैसेज को सुन रही हूँ जब कोई दूसरा इंसान बोल रहा है, या अगर दूसरे इंसान ने मुझे कोई मैसेज रिटन फॉर्म में भेजा है तो मैं अटेंटिवली मैम मेरी अटेंडेंस लगा देना. हु इज दिस? मैं सिमरन शर्मा. ओके बच्चे. मैम मैं भी लेट आया हूँ, मेरी भी अटेंडेंस लगा देना. ठीक है समीर बच्चे. नाहर ने. All right. So, Sameer and Simran, we are discussing verbal communication today. Verbal communication मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी communication, it is a type of the communication जिसमें हम words use करके अपनी information share करते हैं. ठीक है? यस मैम. हम आगे discuss Yes, करते ma'am. हैं. So kindly pay attention. So यहाँ पे last paragraph में it says that जो verbal communication है उसके लिए दोनों चीज़ें, it is important that the person he should have speaking ability भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ listening skills भी बहुत अच्छे होने चाहिए. क्योंकि अगर आप जब अपना मैसेज सेंड कर रहे हो तो उसके बाद रिसीव करने के टाइम आप अटेंटिवली मैसेज सुन नहीं रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग इट प्रॉपरली, आपका ध्यान कहीं और पे और है, तो फिर क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा रिसीवर को, जो आपका रिप्लाई होगा रिसीवर की बात का, वो इफेक्टिव नहीं होगा. So it is very important that you should listen properly. If you remember, आपने एक वीडियो देखी थी about okay, lots of students were absent, so you must haven't watched it. Only Karan was there in the lecture. So there was a video in which there was a lady who talks about 7 ways through which you can make a conversation with anybody. So इस conversation में इस lecture में she says that you should not listen to reply. कभी भी किसी की बात को इसलिए नहीं सुनो कि मुझे reply करना है. You should listen to listen. So your focus should only be upon listening. कि मुझे ये सुनना है, समझना है. जो reply होगा वो automatically बहुत अच्छा reply आएगा उसके बाद, because the question or the reply is going to be genuine one. क्योंकि आपने बहुत अटेंटिवली सुना. ठीक है. सो
वर्बल या स्पोकन कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट? Now, how effectively an individual listens to the subject matter decides the effectiveness of the communication. एक इंसान कितने अच्छे से एक सब्जेक्ट मैटर को किसी दूसरे इंसान को समझ रहा है, सुन रहा है, उसी के बेसिस के ऊपर हमारी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगी। इफ़ द पर्सन इज़ अ वेरी गुड लिसनर तो वो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अगर रिसीवर हमारा गुड लिसनर नहीं है, उसका ध्यान कहीं इधर उधर है, वो सुनने की समझने की ट्राई नहीं कर रहा, या ही इज जस्ट वेटिंग कि ये चुप करे और मैं अपनी बात आगे रखूं, तो फिर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लिसन टू द अदर पर्सन एज वेल। ठीक है, यू शुड नॉट ओनली प्रायोरिटाइज योर आइडियाज एंड ओपिनियन कि मुझे ही बात करनी है, मुझे ही समझाना है, या मुझे ही अपना मैसेज कन्वे करना है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू अदर पर्सन एज वेल, एंड यू शुड लिसन टू द अदर पर्सन वेरी पेशेंटली। ओके, इतना समझ आया सबको? एनी डाउट्स यहाँ तक? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया ही हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारी वो दो टाइप्स की है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। Moving to the next one, now we'll discuss about oral communication. First, we'll talk about the essentials of effective oral communication, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे जो oral communication है, जो हमारे speaking skills हैं, वो बहुत अच्छे हों और हमारा जो मैसेज है वो बहुत अच्छे से हमारे रिसीवर तक पहुंचे और कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसइंटरप्रिटेशन ना हो। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक होना चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो, बिकॉज अदरवाइज जो आपका रिसीवर है वो आपके मैसेज को शायद समझ ना पाए। अगर आप एक वर्ड को ही गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो तो हो सकता है कि वो फिगर आउट ना कर पाए कि आप किस वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो। ठीक है, सो वेन एवर यू टॉक, वेन एवर यू स्पीक समथिंग, यू शुड बी अवेयर कि उस वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है। हल्का फुल्का और आई अंडरस्टैंड कि हमारे डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से कुछ वर्ड्स को बोला जाता है, तो इतना चलता है। पर ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हो फॉर दैट वर्ड, राइट? सो जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, मेक श्योर दैट प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। Next is self-confidence. So whenever you talk, whenever you communicate your message orally, you should be very confident. क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होगे, आप तभी दूसरा इंसान जो कि आपका रिसीवर है उसको कन्विंस कर पाओगे या अपना मैसेज उस तक इफेक्टिवली पहुंचा पाओगे। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, तो रिसीवर को भी आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं होगा, right? The receiver might feel कि शायद the information that you are sharing is untrue, true नहीं है, false information है, you are not confident about it. You must have seen salesmen. बहुत बार आप सेल्समैन देखते हो जो प्रोडक्ट्स अपने सेल करते हैं रोड पे या रोड साइड पे, आपके घर आके, या आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, किसी स्टोर पे जाते हो, तो आपको जो इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रोडक्ट के साथ कि दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये फीचर्स हैं, ऐसे चलाते हैं, ये एडवांटेजेस हैं इसके, या ये मेरिट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अबाउट द प्रोडक्ट। तो वो जब आपको उसके फीचर्स बता रहे होते हैं बेसिकली, तो क्या होता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको उसके फीचर्स बताते हैं। ही और शी विल ट्राई टू मेक यू फील कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए एंड यू शुड बाय इट। और वो कैसे कन्विंस, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं है पर फिर भी हम कन्विंस होकर ले लेते हैं। दैट्स बिकॉज वो जो सेल्समैन था उसके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत कॉन्फिडेंटली उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। सो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था कि हम भी कन्विंस हो गए कि ओके दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो आप बहुत अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर पाओगे और बहुत इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर पाओगे।
ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू essentials of effective oral communication. Next is concise and complete. We'll discuss about these 2 points in detail when we'll talk about 7 C's of communication. मैं आपको briefly बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. Concise का मतलब होता है बच्चे short या compact, ठीक है, या टू द पॉइंट वी कैन से. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, जब आप ओरली किसी को या स्पीच दे रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो कोई, या अपना पॉइंट स्टेट कर रहे हो, सो वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग एन आइडिया ओरली, यू शुड मेक श्योर कि आपका जो मैसेज है वो कंसाइज कॉम्पैक्ट है, इट इज़ टू द पॉइंट. अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आप उसमें दे रहे हो. इट शुड नॉट हैव ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए. कंप्लीट मैसेज मीन्स दैट यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. जैसे हम नोटिस राइटिंग करते थे, नोटिस राइटिंग में हम एक चीज़ को ध्यान में रखते थे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसी में होने चाहिए. कि अगर एक इवेंट के बारे में कोई नोटिस है तो हम नोटिस में लिखते थे कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, किस दिन होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, अपने नाम किसको देने हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. ऑल दीज डिटेल्स यूज्ड टू बी मेंशन्ड इन दैट नोटिस. सो सिमिलरली जब भी आप कोई अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी को, तो आपका मैसेज पहली बात कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी बात वो कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड मोर ओवर घुमा फिरा के मैसेज को कन्वे नहीं करना चाहिए. टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मैसेज को कन्वे करो. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज लॉजिकल सीक्वेंस. लॉजिकल सीक्वेंस भी हम अपने 7 C's जब डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस इट इन डिटेल. बेसिकली लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ बात कन्वे कर रहे हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो लिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए. ऐसे नहीं है कि मैं एक सेंटेंस में एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, फिर दूसरे सेंटेंस में मैं कोई अलग ही चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो तीसरे सेंटेंस में मैं उससे अलग चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो तीनों सेंटेंसेस का कोई लिंक नहीं होगा और ऐसे लगेगा कि जो रिसीवर है उसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. सो फर्स्ट यू शुड मेक वन थिंग क्लियर, एक चीज़ के बारे में वो आप बात करो और क्लियर करो, और फिर दूसरी चीज़ के ऊपर स्विच टू द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करो, और फिर तीसरे के बारे में, फिर चौथे के बारे में, ताकि ये लिंक्ड हो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ. ठीक है, सपोज आपने अपने फ्रेंड को 3 चीज़ों के बारे में बताना है, तो आप पहले एक, यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट थिंग, और अभी आपने वो पहली बात कंप्लीट करी ही नहीं है, आप सेकंड के बारे में बात करना शुरू हो गए, फिर वो अभी सेकंड वाली कंप्लीट नहीं करी है, फिर फर्स्ट वाली शुरू हो गई, अभी फर्स्ट कंप्लीट नहीं करी, थर्ड स्टार्ट कर दी है, फिर थर्ड वाली बात को बीच में काट के सेकंड स्टार्ट करती है. तो ऐसे क्या होगा, जो रिसीवर है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा. सो यू शुड हैव लॉजिकल सीक्वेंस. इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप जो भी बात कर रहे हो, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए. ठीक है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, उनका लिंक होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो बहुत कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज नेचुरल वॉइस. सो आप जब भी बात करते हो, आपका जो वॉइस है वो बहुत नेचुरल होना चाहिए. नेवर ट्राई टू फेक आपका वॉइस, आप किसी को मिमिक करने की ट्राई नहीं करो, बिकॉज दैट वोंट लुक गुड. So whenever you talk, whenever you communicate something, you should talk in your natural voice. Next is tone. टोन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, बहुत रूड साउंड नहीं करने चाहिए आप, बहुत हम्बल एंड पोलाइट टोन होनी चाहिए आपकी. सो जब भी आप बात करो, मेक श्योर कि आप बहुत ही नाइस एंड स्वीट एंड पोलाइटली बात कर रहे हो, बहुत अग्रेसिव टोन नहीं है आपका, बहुत लाउडली बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर ऐसे ही लगेगा कि आप बहुत गुस्से में बात कर रहे हो. ठीक है, सो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो कुछ भी, बहुत ही
सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए आप। ऐसा भी नहीं है कि बहुत धीरे बोल रहे हो कि दूसरे इंसान को सुनाई ना दे। सो यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस जगह पे कितनी आवाज़, कितनी पिच की ज़रूरत है और हमारी टोन क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो टोन मतलब कि बहुत हम्बल और बहुत नाइस तरीके से आप बात करो। पिच आपकी ठीक हो, बहुत लाउड या बहुत सॉफ्ट स्पोकन नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, बट ऐसे नहीं कि बहुत ही धीरे आवाज़ में बात कर रहे हो कि सुनाई नहीं दे रहा। सो अग्रेसिव टोन कभी नहीं यूज़ करनी है। टॉन्टिंग टोन, यू अंडरस्टैंड है ना, से जब भी कोई बात करता है तो किस टोन में, हम कहते हैं ना कि अपनी टोन संभाल के बात करो अगर कोई रूड है हमारे साथ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ टोन। सो आप बहुत ही नाइस, बहुत ही हम्बल एंड पोलाइट तरीके से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द इंटोनेशन पैटर्न। वेरिएशन इन द इंटोनेशन पैटर्न इज बच्चे कि जब हम बात करते हैं ना तो एक रोबोटिक साउंड, एक रोबोटिक वॉइस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जैसे रोबोट है वो एक ही टोन पे, एक ही पिच पे बात करता रहता है, कोई बीच में सेंटेंसेस के ब्रेक नहीं, वो बस एक मशीन की तरह वो बोलता रहता है। बट अगर जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जब बात करते हैं तो हमारी वॉइस में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कभी हमारी आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी हमारे वर्ड्स की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, कभी वर्ड्स की स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, कभी कभी हम किसी वर्ड के ऊपर पॉज करते हैं और फिर उसको एम्फोसिस दे के बात करते हैं। आप व्हेनेवर आई टॉक यू मस्ट आई हैव रियलाइज कि है ना, जब हम अब डे टू डे कन्वर्सेशन करते हो तब भी आप रियलाइज करते हो कि आप सेम टोन में बात नहीं करते, सेम पिच पे बात नहीं करते रहते, एक ही पैटर्न नहीं फॉलो करते। तो उसमें वेरिएशंस होते हैं। कभी कभी लंबा पॉज देते हैं बीच में, कभी कभी छोटा सा पॉज देते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे के बोला जाता है ताकि जो हमारा रिसीवर है वो अटेंटिव हो जाए उस वर्ड को सुन के और उसको समझ आए कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये सारे जो पॉजेस देना, कभी कोई वर्ड लाउड बोलना, कभी कुछ स्लो बोलना, कभी किसी वर्ड के ऊपर एम्फोसिस देना, कभी बहुत फास्ट बोलना, ये स्पीड चेंज करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंटोनेशन पैटर्न्स हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ओरली कम्युनिकेटिंग टू समबडी बिकॉज इट मेक्स द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। अगर एक मोनोटोन है और एक रोबोटिक साउंड आपको लग रहा है तो आफ्टर अ पॉइंट आपका ध्यान जो है वो यू लूज द अटेंशन। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जब आप बात कर रहे हो तो यू शुड हैव वेरिएशंस इन योर इंटोनेशन पैटर्न। आपके बात में आप जब बात कर रहे हो उसमें वेरिएशंस आने चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Is this topic clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts Yes, to ma'am. किसी को कोई doubts है? No, ma'am. All right. No, ma'am. So thank you for attending this lecture. We'll meet tomorrow and we'll discuss oral communication. Thank you, ma'am. Merits हैं, demerits हैं, क्या types हैं, वो सारी चीज़ें हम next lecture में discuss करेंगे, ठीक है? Okay, so thank you everyone for attending the lecture. I'm going to end the session now.